Very good morning, students. I hope you all are fine. In today's video, I will explain two theory topics of accountancy. We will start with first one, accounting process. Based on attributes of accounting, the steps of accounting process are as follows. If you remember in first video, I had explained you characteristics or attributes of accounting. Yes, so all points are similar to that. First, identifying financial transaction and event, where we will identify the transaction that must be business transaction and economic. Yes, that must be in terms of money. Then recording, where we will record in first book journal or its subsidiary book. Then classifying, where posting will be done in ledger. Then summarizing, where summary will be prepared, and under that trial balance, trading account, P&L account and balance sheet will be prepared. That is part of final accounts. Then fifth step, that is analyzing and interpreting, where analysis and interpretations will be done. And finally, accounting information will be communicated to its users. So these are steps of accounting. Accounting is a systematic process. So all steps will be followed in sequence. मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन की थी, जिसमें सारे स्टेप्स यही एक्सप्लेन किए थे जो आज हम एज अ प्रोसेस पढ़ेंगे. अकाउंट्स जब हम बना रहे हैं, जब हम हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसकी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो हमें फॉलो करनी है. वो स्टेप बाय स्टेप ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगी और हम हमारे अकाउंट्स मेंटेन कर पाएंगे, जिसमें फ़र्स्ट हमें ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि क्या ये ट्रांजैक्शन मेरे बिजनेस की है, क्या ये मनी के टर्म्स में है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, तो ही मैं रिकॉर्ड करूँगी. सो द सेकेंड स्टेप इज़ रिकॉर्डिंग, जहाँ पे हम हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं. वो ट्रांजैक्शन काफ़ी बार सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड होती है, जो हम धीरे धीरे प्रैक्टिकल पार्ट सीखेंगे तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा. देन थर्ड स्टेप, जहाँ पे क्लासिफाइंग की प्रोसेस होती है, जहाँ पे हम ट्रांजैक्शन लेजर में पोस्ट करेंगे. सो लेजर बुक, वो भी आप ग्रेजुअली प्रैक्टिकल पार्ट में पढ़ोगे. देन समराइजिंग, जहाँ पे ट्रायल बैलेंस समरी प्रिपेयर होगी और फाइनल अकाउंट्स बनेंगे. एंड फाइनल अकाउंट्स में ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कैसे बनानी है वो हम सीखेंगे. देन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस विल बी डन. हम उससे कुछ एनालिसिस करेंगे, हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, हमारी बिजनेस पोजीशन को हम एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे. एंड फाइनली जो हमारे अकाउंट्स है, हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, वो हम यूज़र से कम्युनिकेट करेंगे. यस, सो ये सारे स्टेप्स हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अकाउंटिंग प्रोसेस विथ डायग्राम. See, accounting is systematic process, so all steps will be followed in sequence. So here is the first one, financial transaction and event. First we have to identify transaction. हमें देखना पड़ेगा कि ये ट्रांजैक्शन बिजनेस की है या नहीं. यस, अगर हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, अगर वो मनी के टर्म्स में है, मॉनेटरी है, इकोनॉमिक है, तो ही हम आगे प्रोसीड करेंगे. यस, सो द फर्स्ट step is identifying transaction, where transaction must be business transaction and economic transaction. Then second step is recording. Now to record business transactions, we have to pass entries which we will write in journal book. Yes, in journal all transactions, all entries are of mixed nature. Yes, so those are separately recorded in subsidiary book that we will understand with respective chapter. After recording, the next step is classifying, where we have to post business transactions in ledger book.
So the next step is preparing ledger book or classifying. Then next is summarizing, where summary will be prepared. Yes, trial balance, and second and third, which is part of final accounts, trading account, profit and loss account, and preparation of balance sheet. So this is the step of summarizing. Then next is analysis and interpretation, where business position, accounting information will be analyzed and interpretations will be done. And finally, our accounting information will be communicated to users. So this is the process of accounting. I can understand that all terms are very new for you, but as soon as we start practical part, all terms will be more clear. So इस तरह से accounting process, इस तरह से हम हमारे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, जिसमें ये पूरी प्रोसेस फॉलो होती है, जहाँ पे हम पहले ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको क्लासिफाई किया जाता है लेजर बुक में, फिर समरी प्रिपेयर की जाती है, फिर उस पर कुछ एनालिसिस और इंटरप्रिटेशंस की जाती है, जहाँ पे हम हमारी बिज़नेस पोजीशन देखते हैं कि हमारी बिज़नेस पोजीशन कैसी है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, एंड फाइनली हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम यूज़र्स को कम्युनिकेट करते हैं. यस, हमारे यूज़र्स जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था. यस, इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स. I hope this first topic is clear to you. Now the next topic is bookkeeping, accounting, accountancy. It sounds similar, but there is huge difference among all these three terms. The terms bookkeeping and accounting often considered as same, but that is not correct. The two terms are different from each other. Accounting is a wider concept and that includes bookkeeping. Yes, bookkeeping is narrow and accounting is wide. Bookkeeping is part of accounting. Yes. Now first we will understand what is bookkeeping. Bookkeeping is a part of accounting, being a process of recording financial transactions and events in books of accounts. Thus, bookkeeping involves identifying transactions and events, measuring them in terms of money, recording the identified financial transactions and events in books of accounts, classifying recorded transactions and events, that is posting them into ledger. So bookkeeping is not the entire accounting process. Bookkeeping is only up to ledger posting. Yes, if we consider only this much part, so we can say the right side part is bookkeeping. Yes, where transaction will be identified, recorded and classified. Yes, so bookkeeping is narrow, but accounting is wider, because where bookkeeping will end, accounting will start. Yes, यहाँ पे बुक कीपिंग का मीनिंग दिया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि बुक कीपिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड और क्लासिफाई करना है. पहले हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको मनी टर्म्स में मेजर करेंगे. यस, देन थर्ड वी विल रिकॉर्ड, हम रिकॉर्ड करेंगे, और फोर्थ हम उसको क्लासिफाई करेंगे, जहाँ पे हम ट्रांजैक्शन को लेजर में पोस्ट करते हैं. सो यहाँ पे बुक कीपिंग पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ क्लासिफाइंग तक का ही है. सो अगर मैं अकाउंटिंग प्रोसेस में आपको दिखाऊं, तो जो जहाँ पे मैंने 2 पार्ट्स में अकाउंटिंग प्रोसेस को डिवाइड किया है, सो राइट साइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग है, इतना पार्ट बुक कीपिंग में आता है. यस, अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूँ तो अकाउंटिंग लेफ्ट साइड जो है, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन. यस, सो ये 3 जो है वो अकाउंटिंग है. सो बुक कीपिंग इज नैरो एंड अकाउंटिंग इज वाइडर. Now see, here is definition of bookkeeping. Bookkeeping is an art of recording in books of accounts the monetary aspect of commercial and financial transaction. जो हमारी business transactions है, जो
हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे ही कुछ और डेफिनेशंस भी दी हुई है। जस्ट गो थ्रू विथ रेस्ट डेफिनेशंस। Now I am going to explain the meaning of accounting. Accounting is a wider concept than bookkeeping. It starts where bookkeeping ends. जैसे कि मैंने आपको बताया कि bookkeeping सिर्फ क्लासिफाइंग तक है, जहाँ पे bookkeeping end होता है वहाँ पे accounting start होता है. Yes, so summarizing, analysis and interpretation और communicating to users, ये सब accounting का पार्ट है. Now let's understand the difference between bookkeeping and accounting. यहाँ पे डिफरेंस के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. द फर्स्ट इज स्कोप. Bookkeeping is concerned with identifying financial transaction and events, measuring them in terms of money, recording them in the books of accounts and classifying them. Yes, जो मैंने आपको मीनिंग में एक्सप्लेन किया था कि बुक कीपिंग क्या है, कि ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया, yes, उसको मेजर किया मनी के टर्म्स में, देन रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग. यस, सो ये बुक कीपिंग है. अब अकाउंटिंग क्या है? व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विथ समराइजिंग, यस, समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस एंड इंटरप्रेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स. यस, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ. जो भी हमारे रिजल्ट्स हैं, जो हमारे इंटरप्रिटेशन से आउटकम्स आए हैं, उसको हमें कम्युनिकेट करना है. सो वेयर बुक कीपिंग एंड्स, अकाउंटिंग स्टार्ट्स. देन सेकेंड स्टेज, इट इज़ प्राइमरी स्टेज. इट इज़ द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. जो हमारा बुक कीपिंग है वो प्राइमरी बेस है. अकाउंटिंग प्रोसेस में जो स्टार्टिंग के स्टेप्स हैं वो बुक कीपिंग के हैं. यस, सो वी कैन से दैट बुक कीपिंग इज प्राइमरी स्टेज. अकाउंटिंग इज़ सेकेंडरी स्टेज, क्योंकि जहाँ पे बुक कीपिंग एंड होता है वहाँ पे अकाउंटिंग स्टार्ट होता है. येस, सो अकाउंटिंग इज़ सेकेंडरी स्टेज. इट बिगिन्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स. जहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म होता है वहाँ पे अकाउंटिंग स्टार्ट होता है. देन ऑब्जेक्टिव. द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज़ टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना. यस, हमारे सारे रिकॉर्ड्स को सिस्टमेटिकली मेंटेन करना. नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू एसर्टेन नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन एंड टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज. जो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है वो रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो बुक कीपिंग में हो गया. यस, रिकॉर्ड होने के बाद फाइनली हमारे रिजल्ट क्या है, जहाँ पे हम समरी बनाते हैं, हम ढूंढते हैं हमारा प्रॉफिट क्या आया, हमारा लॉस क्या आया, उसको इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना. ये ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का. येस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू एसर्टेन द नेट रिजल्ट एंड फाइनली कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज. येस, टू different users. Then nature of job. This job is routine in nature. And accounting, this job is analytical and dynamic in nature. जो बुक कीपिंग है वो बहुत रूटीन वर्क है. जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हो रही है उसको रिकॉर्ड करना है. यस, सो इसका जो जॉब का नेचर है वो बहुत रूटीन है. यस, बट जो अकाउंटिंग है उसकी जो जॉब है वो एनालिटिकल है, डायनेमिक नेचर है. उनको कुछ डिसीजंस लेने होंगे, उनको प्रॉपरली एनालाइज करना है बिजनेस सिचुएशन को. सो द नेचर इज एनालिटिकल एंड डायनेमिक. देन परफॉर्मेंस. बुक कीपिंग टास्क इज परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ. यस, वेयर अकाउंटिंग टास्क इज परफॉर्म्ड बाय सीनियर स्टाफ. जो हमारा बुक कीपिंग का टास्क है, जो हमारी प्रोसेस क्लासिफाइंग तक है, वो कोई भी जूनियर स्टाफ परफॉर्म कर सकता है. बट अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूँ तो वो थोड़ा मेजर वर्क है, थोड़ा इम्पॉर्टेंट वर्क है, तो उसको परफॉर्म करने के लिए कोई सीनियर स्टाफ रिक्वायर्ड है. देन सिक्स्थ, स्पेशल स्किल्स. बुक कीपिंग इज़ मैकेनिकल इन नेचर एंड दस डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल. जो बुक कीपिंग है वो रूटीन वर्क है. सो बुक कीपिंग के लिए कोई भी स्पेशल स्किल रिक्वायर नहीं है. यस, अकाउंटिंग का बेसिक नॉलेज और टू ऑपरेट एनी सॉफ्टवेयर, अप टू दैट नॉलेज इज सफिशिएंट.
But if we talk about accounting, so it requires special skill and ability, as they have to analyze our accounting information. Yes, they have to interpret accounting information. So special skill is required. So this was about bookkeeping and accounting. Now, what is accountancy? Accountancy is a systematic knowledge of accounting. It explains how to deal with various aspects of accounting. It educates us about maintaining books of accounts and how to summarize the accounting information and communicate it to the users. अब जो accounting है वो एक सिस्टमेटिक नॉलेज है अकाउंटिंग का. अकाउंटिंग इज़ प्रोसेस जहाँ पे हमें रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, पूरी लेंदी प्रोसेस फॉलो करनी है. यस, वो पूरा अकाउंटिंग है. बट उसका नॉलेज कहाँ से आ रहा है? अकाउंटेंसी से. सो अकाउंटेंसी इज़ अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग. यस, हमें नॉलेज कहाँ से मिलेगा? अकाउंटेंसी से मिलेगा. In the words of Collar, accountancy refers to the entire body of the theory and practice of accounting. So accountancy में पूरी theory और practical included है. Now we will see the difference of accounting and accountancy. Accountancy is knowledge, whereas accounting is action और process. जो accountancy है वो पूरा knowledge है. Yes? बट अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूँ तो वो प्रैक्टिकल पार्ट है, वो एक्शन है, वो प्रोसेस है जो एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना है. अकाउंटिंग प्रोसेस इज कैरीड आउट ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फ्रेम्ड बाय अकाउंटेंसी. हम अकाउंटिंग कैसे कर रहे हैं? तो रूल्स और रेगुलेशन से. यस, कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, तो वो रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स वो सब किस में है? वो सब अकाउंटेंसी में है. दस इट मे बी सेड दैट अकाउंटेंसी इज नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग and accounting is the application of accountancy. Understand this statement properly. Accountancy is knowledge of accounting. अगर मुझे accounting करना है तो मुझे accountancy का knowledge चाहिएगा. Yes, so accountancy क्या है? Knowledge है, जहाँ से मुझे accounting का knowledge मिलेगा. और अगर मैं रिवर्स देखूँ तो अकाउंटिंग क्या है? जो भी मैंने नॉलेज अकाउंटेंसी से लिया वो मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, वो उसका एप्लीकेशन है. I hope both topics are clear to you. If you have any doubt, feel free to contact me.